السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ایک بار پھر پلوشہ کوکس آفیشیل کی دیورانی بیا بازی لے گئی۔ ایک بار پھر پلوشہ محترمہ کو پچھاڑ دیا اور ساس کی دعاؤں کی حقدار ٹھہرائی گئی۔ دوسری طرف پلوشہ کوکس آفیشیل دوسرے سال بھی اپنی ساس کی دعاؤں سے محروم رہ گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پلوشہ کوکس آفیشیل کی ساس اس کو اپنے گھر میں آنے کی نہ تو اجازت دیتی ہیں، نہ ہی ان کو ویڈیو بنانے کی اجازت دیتی ہیں، نہ ہی ان کو دعائیں دیتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی بیٹی کی شادی میں بھی نہیں آئی، یعنی خود کی پوتی کی شادی میں شامل نہیں ہوئی اور پوتی کو ایک عام سا گفٹ دے دیا۔ وہی گفٹ جو پلوشہ نے اپنی ساس کو دیا تھا، وہی معمولی سا گولڈ کا ایک بریسلٹ تھا یا کوئی نیکلس، اس طرح کی کوئی چھوٹی سی چیز تھی جو انہوں نے واپس پلوشہ کی بیٹی کے منہ پہ مار دی۔ پلوشہ نے جھوٹا بھرم بنانے کے لیے ایک انسٹا پہ چھوٹی سی ریل شیئر کرتے ہوئے لوگوں کو یہ فیل کروانے کی کوشش کی کہ وہ بڑی اپنے سسرال والوں کے ساتھ بنا کے بڑا رکھتی ہے اور آنا جانا ہے۔ لیکن جی کہانی کا وہ کہتے ہیں نا، اصل کہانی یہ نہیں جو پلوشہ صاحبہ بتاتی ہیں۔ دوسرا جی، بیا کی غیر موجودگی میں شوہر کو ساس کے پاس چھوڑا، ساس کی خدمتیں بھی کی، لیکن پلوشہ کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تو یہ ہے آج کے ہمارے ٹاپک۔ ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ امی ابو کی کہانیوں سے اس چینل کے سفر کا آغاز ہوا اور ہمیشہ امی ابو کی کہانیاں ہی اس چینل سے سنائی گئیں۔ پھر اس میں چاہے امی ابو کی جانے انجانے میں تذلیل کی گئی یا ان کو ان کا کانٹینٹ کے طور پہ ان کو استعمال کیا گیا، جو بھی کیا گیا بہرحال، لیکن کہانیاں صرف ماں باپ کی ہی سنائی گئی۔ اپنی فیملی تک، اپنی فیملی کی اچی بچی ہر چیز سوشل میڈیا پہ بتائی گئی، یہاں تک کہ بھائی کی ڈیتھ کیسے ہوئی، دوسرے بھائی کی شادی کیوں نہیں ہوئی، 5-6 بہنوں کے رشتے میں نے کیسے کروائے، یو کے میں میری شادی کے وقت میرے ابا نے میرے کندھوں پہ کیا بھاری ذمہ داری ڈالی جو میں نے پوری کرنے کے لیے بہت کوشش کی، اور ہر ایک چیز اس بدی نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی، یہاں تک کہ وہ باتیں بھی شیئر کر دیں جو اب اس کے گلے کا پھندا بن چکی ہیں اور اس کے لیے وہ باتیں شرمندگی کا باعث ہیں، بنتی ہیں، اس کو وہ پرانی باتوں کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کیونکہ چینل نیا تھا، ویوز لینے تھے اور سٹارٹ ہی فیملی کی کہانیاں سنا کے اس چینل کا آغاز کیا گیا تھا، تو پھر وہ ویوز کے چکر میں، ویوز لینے کے لالچ میں پھر وہ کہانیاں مطلب سناتی گئیں اور یہ وہ چیز بھول گئیں کہ یہ جو میں اب کہانیاں سنا رہی ہوں آگے چل کے یہی کہانیاں جو ہے نا مجھے پریشان کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران یہ محترمہ جو ہیں، ان کے بھائی کی ڈیتھ بھی ہوئی، انہوں نے بھائی کی بیماری کو شو کر کے بہت زیادہ پیسہ بھی لیا لوگوں سے علاج کے لیے، لیکن وہ بھائی بچ نہیں پائے، لیکن اس پیسے کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا، کیا وہ اپنی بھتیجی کے نام لگایا، بھتیجی کے اکاؤنٹ میں کروایا، یا وہ کس کے کام آیا، کیونکہ بھائی جان کی بیچارے کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو بہرحال کبھی امیر تو کبھی غریب، کبھی خوشحال تو کبھی مطلب بیچاری، کبھی شوہر جو ہیں وہ برانڈ پہناتے ہیں تو کبھی شوہر پہنا نہیں سکتے، کبھی شوہر جو ہیں وہ دل کی ساری حسرتیں پورے کرتے ہیں تو کبھی شوہر کر ہی نہیں سکتے، کبھی خاموش طبیعت تو کبھی شوخ اور چنچل، کبھی بولنے والی تو اپنی بات منوانے والی اور کبھی سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی۔ یہ سارے ڈرامے جو ہیں پلوشہ کوکس آفیشیل کے چلتے رہتے ہیں ان کے چینل کے اوپر۔ کبھی یہ لوگوں کو یہ بھاشن دیتی ہیں کہ مطلب کہ برداشت کرو، خاموش رہو، ریئیکٹ نہ کرو،
और कहीं पे ये भाषण देती हैं कि भी गजाला बन जाओ, हर चीज़ों को तोड़ फोड़ के परे सुट दो। कभी ये कहती हैं रिश्तों को निभाने के लिए वो कहते हैं ना कि कंप्रोमाइज़ करो, तो कभी ये कहती हैं किसी का फुट मैट बनने से बेहतर है कि उन रिश्तों से जान छुड़ा ली जाए, वगैरह वगैरह। मतलब कि घर पल में तोला पल में माशा, इस औरत की नेचर है, तबीयत है। मौका मुनासिबत देख कर ये अपना कंटेंट बनाती है, वो वॉइस ओवर करती है। और एक ही टाइम में लोग तो होते हैं ना 2-2 कश्तियों के मुसाफिर, लेकिन ये एक ही टाइम में 100-100 कश्तियों की मुसाफिर है। और ये चैनल बना के ये पैसा तो कमा रही है, लेकिन बेचारी बुरी तरह से फँस चुकी है। तो ये हमेशा अम्मा अब्बा, अम्मा अब्बा, अम्मा अब्बा, अम्मा अब्बा। तो एक टाइम आया कि लोग तंग आ गए। लोगों ने कहा कि भई बस, खुदा का वास्ता है, अब बस कर दो, कुछ ससुराल वालों की भी कहानी सुना दो। तो जब ससुराल वालों की कहानी सुन की डिमांड की गई कि उनके बारे में भी बताओ, तो उनके बारे में ये बताया गया कि मेरे ससुराल वाले वीडियो में आना पसंद नहीं करते। मेरे ससुराल वाले वो नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पे मैं उनका नाम लूँ, उनका ज़िक्र करूँ। वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते और मुझे भी उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि मैं सोशल मीडिया पे काम करूँ। तो पहली बात तो ये कि आप तो कभी उनके साथ रही ही नहीं हैं, हैं? कभी आप उनके साथ रही होती, कभी उनके साथ टाइम गुज़ारा होता, तो वो आपको मना करते ना कि आप सोशल मीडिया पे ना आएँ। आप तो शुरू दिन से अलग थीं, क्योंकि आपने तो खुद बताया कि मेरे शौहर ने पहले से ही घर खरीदा हुआ था। 1 नहीं शायद 2 घर जो थे, और उन 2 घरों को सेल करके आपने फिर ये एक बड़ा घर लिया जिसमें आप अभी रहती हैं, और यूट्यूब की पेमेंट से आपने इस घर को सेट किया। तो पहले दिन ही आपने खुद बोला कि मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट से ही मुझे अपने खुद के सेपरेट घर में लेके गए। तो आपने कभी अपनी सास की खिदमत की ही नहीं। अगर आप अपनी सास की खिदमत करती, उनके साथ टाइम गुजारती, उनके साथ आपके बच्चे रहते, दादा दादी से मोहब्बत करते, दादा दादी की इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते, अपनी एक टाइम लगा के उसके बाद आप सेपरेट होती, तो फिर शायद आपकी मोहब्बत आपकी सास के दिल में होती, और वो अब आपको कभी भी सोशल मीडिया पे आने से ना रोकती, मतलब कि आपकी तरक्की की राहों में रोड़े ना अटकाती। तो आपने कभी अपनी सास के दिल में घर बनाने की कोशिश ही नहीं की। हालाँकि कोई इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है सास की खिदमत करना, लेकिन यही होता है कि भई आज हम करेंगे तो कल को हमारी बहुएँ करेंगी, क्योंकि बुढ़ापा जो है वो हर एक पे आना है। अगर हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, तो जिस तरह हमने बचपन गुज़ारा, जवानी गुज़ारी, हमने बुढ़ापा भी गुज़ारना है। तो क्या होता है कि अगर हम किसी की खिदमत करते हैं, तो हमें देख के हम एक रोल मॉडल बनते हैं अपनी बहुओं के लिए, बच्चों के लिए, और वो फिर हमें देख के जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी भी खिदमत करते हैं। ठीक है, हालाँकि कोई फ़र्ज़ नहीं है, अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि क्यों किया है। लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो आपकी बहू भी बिल्कुल ऐसे ही करेगी जैसे आपने किया। आपका बेटा भी शादी करेगा, तो पहले दिन से अपनी बेगम को अलग रखेगा। तो आप सोचें कि उस वक़्त आपको कितनी ज़रूरत होगी जब आप बुढ़ापे में होंगी। जैसे इस वक़्त आपकी सास है व्हीलचेयर पे, फिर हो सकता है कि जैसे बिया उन मतलब आपकी सास का छोटा बेटा, वो एक लड़की को ब्याह के लाता है। बड़े बेटे की तो बहू ने खिदमत ना की, ना अपनी सास की कोई इज़्ज़त की, ना उनकी दिल में घर बनाया, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी की लाइफ़ गुज़ारी। दोनों हस्बैंड वाइफ़ ने अपने माँ-बाप की परवाह नहीं की। फिर छोटा बेटा जो है वो एक बहू लाता है। ऐसे ही हो सकता है आपका भी बेटा छोटे वाला जो है वो बिया के हस्बैंड जैसा हो सकता है आपका एहसास करे, जैसे बिया का हस्बैंड अपनी माँ का एहसास करता है, बाप का। और एक खातून लड़की ऐसी उनके घर में ब्याह के आती है जो अपनी सास-ससुर की खिदमत गुज़ार, फ़र्माबरदार, उनके दिल के अंदर घर बनाती है और उनकी खिदमत करने में एक तवील अरसा गुज़ारती है। इस दौरान उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बच्चे अच्छे खासे जवान हो जाते हैं, मतलब 15, 16, 17 साल, इतने अरसे वो अपने सास-ससुर की खिदमत करती रही। और जब सास मुतमईन हुई, ससुर मुतमईन हुआ, और अब टाइम आ गया कि जो बहू है वो अपनी बात उनसे मनवा सकती है, ठीक है, वो टाइम आ गया। तो उसने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पे काम करना है, तो फिर उसकी सास ने उसको मना नहीं किया। वो ही सास जो बकौल पलवशा को मना करती थी कि सोशल मीडिया पे काम नहीं करना, उसी ने अपनी छोटी बहू बिया को काम करने की इजाज़त कैसे दी? क्योंकि किसी का दिल जीतने के लिए एफर्ट लगाना पड़ती है, किसी के दिल के अंदर घर बनाना पड़ता है, जो पलवशा ने नहीं बनाया। तो हो सकता है पलवशा का छोटा बेटा, अल्लाह करे कि वो बिया जैसी कोई बहू ले आए और पलवशा की खिदमत गुजार
बहू उसको मिले, क्योंकि बुढ़ापा तो आना है ना। देखिए हम सब अगर हम बूढ़े होंगे तो हमें ज़रूरत तो पड़ेगी ना कि हमारे बच्चे हमारी खिदमत करें, या फिर हम ओल्ड होम जाएंगे, है कौन करेगा फिर हम, या फिर हम परायों के हाथ में बच्चे हमारे दे देंगे कि हमारे माँ बाप को देख लो, हम हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो जी है, अभी फ़िलहाल तो आसार यही नज़र आ रहे हैं कि पलवशा जी ने जिस तरह अपने बच्चों की तरबियत की है, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे भी कोई बिया जैसी बहू इनके लिए ब्याह के लाएँगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ जैसी ही बहुएँ लाएँगे अपने घर में, क्योंकि माँ ने मिसाल ही ऐसी कायम की है। तो यही वजह है कि पलवशा साहिबा को सास जी जो हैं वो लिफ्ट नहीं करवाती, क्योंकि हमेशा ही पलवशा ने सिर्फ़ अपने मायके वालों को की का पॉजिटिव इमेज बनाया, कभी सास-ससुर, कभी देवर-देवरानियाँ, जेठानियाँ, किसी का ज़िक्र नहीं आज तक किया, और ना ही कभी बिया को कोई वैल्यू दी। यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी में जब इन-लॉज़ को बुलाया, तो सास तो आई ही नहीं, व्हीलचेयर पे थी, तो क्या हुआ, ट्रैवल इतना मुश्किल भी नहीं था, अपनी गाड़ी में वो ईज़िली आ सकती थीं। ये चाहते तो खुद भी जाके उनको लेके आ सकते थे, ठीक है, लेकिन वो आना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो आई नहीं। और बिया का वेलकम जो किया वो सबको पता है कि एक नाइट स्टे भी पलवशा ने उसको अपने घर में नहीं करने दिया। तो यही वजह है कि पिछले साल भी बर्थडे पर इसने उनके घर में घुसने की कोशिश की थी, और एक चुपके से एक शॉर्ट वीडियो का बनाया था, अपनी सास का हाथ दिखा दिया था लोगों को कि भाई ये देखें मैं सास के पास पहुंची हूँ गिफ्ट्स लेके, मेरी सास का बर्थडे था। लेकिन जी सास ने दुआओं से महरूम ही रखा। पिछले साल भी बिया को ही दुआएं मिली थी, और इस साल भी बिया दुआएं बटोरने में कामयाब होगी। और बड़ों की दुआ जो होती है ना, उसका मैं कहती हूँ कि कोई नेमुल बदल होता ही नहीं है। दुनिया में आप जितने मर्जी कामयाब हो जाए ना, जितने मर्जी आप पैसा कमा लें, लेकिन अपने बुजुर्गों की दुआओं से महरूम रह जाए ना, तो ये पैसा दौलत, ये दुनिया जितनी आपने हासिल की किसी काम की नहीं। तो बेचारी पलवशा, तो अफ़सोस मुझे होता है कि बेटी की शादी कर दी, सास-ससुर को से मशवरा तक ना किया, सास-ससुर से पूछना तक गवारा ना किया, और फिर सास ने भी कहते हैं ना, ज़ाहिर बात है जितना ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, दोनों से बजती है ना। फिर सास भी तो सामने से थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेंगी ना। उन्होंने क्या किया, एक छोटा-सा गोल्ड का गिफ्ट, वो जो पलवशा मैडम ने खुद अपनी तरफ से किसी बर्थडे पे अपनी सास को दिया था पुराने वक़्तों में, वो ही पलवशा के मुँह पे दे मारा कि ये लो तुम्हारी बेटी के लिए गिफ्ट। और मज़े की बात ये है कि पलवशा को इतना उस चीज़ पे गुस्सा आया कि मेरी सास के पास बहुत सारा ज़ेवर है। उनके पास गोल्ड की कोई कमी नहीं है। अगर आप उनके हाथ देखें, उनको उनकी बहू दिखाती है बिया, तो उन्होंने हमेशा ही गोल्ड की चूड़ियाँ और इस तरह रिंग्स पहनी होती हैं। और ख़ुद पलवशा ने अपनी वीडियो में बताया था कि मेरी सास के पास बहुत मतलब के ज़ेवरात हैं गोल्ड के। उसमें से सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ पोती को दी, क्योंकि पोती ने कभी दादी को दादी समझा ही नहीं। और आज तक शादी के मतलब 1 डेढ़ साल हो गया, हमने नहीं देखा कि वो दादी से मिलने गई हो अपने हस्बैंड के साथ। हालाँकि पलवशा साहिबा के मामू की दावत में वो चली गई थी, यानी कि अपनी नाना की, जो उसके नाना बनते हैं रिश्ते में। लेकिन खुद की दादा-दादी और अपनी ददिहाल चाचियों से और कज़न से, जो जितने भी इनके ख़ानदान, जो अपना इनका ख़ानदान है, वहाँ ये मिलने नहीं गईं। तो यही वजह है कि पलवशा बेचारी खाली हाथ रह गई है। ससुराल वालों ने 1 टका भी उसको नहीं दिया, और बेचारी नदीदी लालची औरत, इतना कुछ होने के बावजूद भी उसका दिल तो होगा कि मुझे वहाँ से कुछ मिले। यही वजह थी कि बिया जब पाकिस्तान गई, तो उसने अपने हस्बैंड को जाने की इजाज़त दी अपने माँ-बाप की केयर के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी सास ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और इस बर्थडे पर बेचारी वहाँ जा भी नहीं सकी, क्योंकि अगलों ने घुसने ही नहीं दिया इसको अपने घर में। वो चाहते ही नहीं है कि ये उनके घर में आए, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अब क्या किया इसने कि जब सोशल मीडिया पे ये बात फैली बिया की वीडियो के बाद कि जो उनकी मदर इन लॉ है, उनका बर्थडे था, और उसने बड़ा वो हमेशा ही इस तरह उनका सेलिब्रेट करती है अपने हाथों से केक बना के, और फिर वो उनको बहुत ज़्यादा उसको दुआ देती हैं। और उन्होंने कहा कि इसका अजर मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही तुम्हें इसका अजर देगी, मैं तुम्हें नहीं दे सकती जितनी तुमने मेरी खिदमत की है। तो पलवशा ने एक पुरानी सी रील उठा के, जब मतलब आते-जाते कहीं वहाँ से गुज़रते हुए उनके घर गई, तो वो हल्का-सा दरवाज़े पे नॉक करके, तो उनका दिल खुश तो हमारा दिल खुश। तो अंदर तुम्हें वीडियो नहीं ना बनाने दी अगलों ने, हैं?
तो भरम बनाने के लिए एक छोटा-सा वो लगा दिया शॉर्ट वीडियो बेचारी ने, क्योंकि वो इसको इजाज़त ही नहीं देते वीडियो बनाने की। तो ये जाके भी वहाँ पे बेचारी पिछले साल बिया के साथ इसने वीडियोज़ बनाई भी थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ बेचारी को। तो ये है इनकी रियलिटी, जो आपकी रोल मॉडल्स हैं, जो आपको यहाँ पे बैठ के किस्से कहानियाँ सुनाती हैं, आपको घर गृहस्थी के तरीके सिखाती हैं, घर बसाने के आइडियाज़ देती हैं, जिनकी कभी खुद अपने इन-लॉज़ से नहीं बनी, जिनके बच्चे अपने दादा-दादी से नहीं मिलते, कभी उनके मुँह से हमने दादा-दादी का नाम नहीं सुना, और कभी इस बंदी को इसके ससुर और सास ने दुआओं से नहीं नवाज़ा। क्यों? क्योंकि भई ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप किसी को मोहब्बत दोगे तो सामने वाला देगा ना। तो जब इसने कभी अपने सास-ससुर के साथ ऐसा रवैया ही नहीं रखा कि वो इसको दुआएँ दें, तो फिर गिला किस बात का? ये हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिनको देख-देख के आप मुतासिर होते हैं, आप खुश होते हैं और आपको लगता है कि ओए होए! इनकी ज़िंदगी तो इतनी शानदार, ये तो ऐसे, ये तो इतने अच्छे। तो अच्छों के साथ हर कोई अच्छा होता है। अब इसकी सास भी इसके साथ अच्छी नहीं है ना, क्योंकि ये उसके साथ इसने अच्छा बर्ताव नहीं किया। मज़ा तो तब आए ना कि जब आप ज़ालिम सास के साथ भी अच्छी हों, बुरे रिश्तेदारों के साथ भी अच्छी हों, बुरे कज़िन्स जो जो जिनकी आपसे नहीं बनती, उनकी भी आप खैर-ख़्वाही करें, फिर आप रोल मॉडल हैं, फिर आप आके सोशल मीडिया पे बैठ के दूसरों को कोई भाषण देने की काबिल हो सकते हैं। ये इतनी हैसियत आपकी बनती है कि भई अब आप किसी को कोई सलाह-मशवरा दें, जिन्होंने कोई परेशानियाँ देखी होती हैं, जिन्होंने अपने इन-लॉज़ के ज़ुल्म और सितम बर्दाश्त किए होते हैं रिश्तेदारों के, तो वो तो कहते हुए भी अच्छे लगते हैं कि हमने बर्दाश्त किया और आप हमारी ज़िंदगियों से सबक हासिल करें। पर इन लोगों की ज़िंदगियों में क्या है, जिससे हमें कोई अच्छी सीख मिले, अच्छा कोई सबक मिले? तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।